اور اس میں جو جس انداز کی گفتگو کرتے ہیں جو ٹھہراؤ ہے ایسا میرا خیال ہے کہ آپ کے شہر وہاں پر ایسا کلچر ہمیں نہیں ملے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعات نہیں ہوتا ہے. ہم جب یہ گفتگو کریں گے مجھے دھیما پن ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز رک گئی اتنا سکون ہے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اتنا سکون یا تو میں کہیں گاؤں میں مل سکتا اور یا پھر کہ گفتگو سے اندازہ ہو حالانکہ ایسا ہے. ان کی پہلی کتاب جو ہے اس کا نام ہے چلتے چلتے. اس میں کی کتاب پڑھتی جا رہی ہے شاعری سب ابتدائی شاعری مسائل ہوتے ہیں. لیکن جب ان کی دوسری کتاب کہاں آ گئے پڑھی ہے تو اندازہ ہوا کہ یہ اوروں سے بہت مختلف ہے. مثال کے طور پر ہم جب باہر کے شاعروں کو پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں ہجرت کے غم نظر آتا ہے, دکھ نظر آتا ہے, اور وہ آج تک 60 سال گزر گئے لیکن وہ ہجرت کے دکھ کبھی بھی نہیں تھا. ان کے یہاں ایک عجیب و غریب اور یہ جو ہے تہذیب کی تباہی کا, جو تہذیب و تمدن جو لوگ وہاں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد خود تو انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لی, ان کی اولاد بڑی تو وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہی تہذیب اور اپنے ہی تمدن کو تباہ و برباد ہوتے دیکھتے ہیں. وہ ان کی کلام میں ملتا ہے اور ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں. یہی اس کتاب کا حاصل بھی ہے. اور جب میں نے ان کے دونوں کتابوں کے ٹائٹل کے ناموں کو جوڑا چلتے چلتے کہاں آ گئے پوری کہانی سمجھ میں آ گئی. انہوں نے مغرب کی جہاں اچھائیاں لکھی ہیں, مغرب کے جو فیض ہیں وہ جہاں لکھے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ دکھ بھی لکھے ہیں جس سے ہم مشرق والے جو وہ نبردار ہوا اور وہاں پر یہ مشرق میں آباد ہو بہت مشکل ہے. اگر وہ مجھے دکھ یہ کتاب یقین آپ مجھے پیش کریں گے اور آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی شاعری کی ان کے والد پروفیسر صاحب محکمہ تعلیم اور حیدرآباد کی گورنمنٹ کالج حیدرآباد بہت صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں جس میں ایک بہت اہم کتاب ہے تاریخی دستاویز سے کہنا چاہیے وہ ہے علی بن نصر, اور دوسری کتاب ہے خلافت کا عروج زمان. یہ دو کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور ان کی ایک اور کتاب ہے شارٹ ہسٹری آف سویلائزیشن, وہ نصاب میں شامل ہے ہمارے پاکستان کے. خلافت کا جو سوال جو ہے آپ کا پتہ چلا ہوا یہ بھی آپ کی یونیورسٹی ہی کے حوالے سے نصاب تو یہ خانوادہ جو ہے پڑھا لکھا ہے, ایک بھی کھانا ہے. بڑے بھائی جب زیدی صاحب ٹورنٹو میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, اور دوسرے بھائی جاوید زیدی وہ بھی امریکہ میں رہتے ہیں, آپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں. یہ سب لوگ ہجرت کر رہے ہیں وہاں پر, لیکن انہوں نے اپنی تہذیب سے رشتہ نہیں توڑا اور ساتھ ساتھ تہذیب کے ساتھ ساتھ یہ جو رسم و رواج انہوں نے اس سے بھی رشتہ آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اہم ہے. تو ہم مزید طرح کے اس کو سنیں گے اور اس شعری نشست کے لیے تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت دیا جو تشریف آئے, خصوصاً میں طالب علم کا شکریہ ادا کروں گا اس لیے کہ پریس کلب میں اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے اور ملتی ہے تو غیر یہ میرے لیے یہ میرا پہلا پروگرام اور مجھے خوشی ہے کہ آج کی مسابقت سے موقع مل گیا ہے. اور ہم سلمان صدیقی ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں, گزارش میں محفل کا آغاز کریں اور احترام دعوت دیں تاکہ ہم سب ذہنی میں پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ یہ میں لایا تو تھا عدیل زیدی صاحب نے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بھابھی صاحبہ بھی تشریف لائیں گے جن کے دم قدم سے سب کچھ چل رہا ہے. تو میں فیملی بھی سے گزارش کروں گا بھابھی بھی آپ تو پھول باہر بھی لے سکتے
जी शुक्रिया कमाल। एक चलाने एक और नौज कमाल ने अपनी रिवायत की पासदारी में आज ये निश्चित मुनक़िद की है। इनकी रिवायत है कि जब भी कोई बाहर से आता है किसी भी शहर से किसी भी ग्रुप से तो उसके एहसास में कोशिश करते हैं तो तकरीब मुनक़िद करें। और आज की इस तकरीब का एहसास ये है कि ये प्रेस क्लब में मुनक़िद हो रही है जो कि ग़ालिबन इनकी पहली तकरीब है। और इसमें जैसे कि बताया खालिद मुइन था कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है, इनकी वजह से यहाँ इजाज़त दी गई थी तकरीब यहाँ। मैं एक इजस का कलामी हो रही है। मैं एक बात अर्सलू साहिब से की जानना कि कराची प्रेस क्लब जो है वो इतना गैर मारूफ नहीं है तो इस चीज़ से करने में ये ज़रूर हुआ है कि कुछ शायद तासुर आ गया हो, वरना सब लोगों के इनमें है कि कराची प्रेस क्लब ने हमेशा रखे पसंद अदीबों को, शेर अदीबों को हमेशा खुशामदीद कहा, साहब को खुशामदीद कहते हैं। यहाँ रोज साहब को, फैज साहब को और फराज साहब को एहसास रुकनीत दी गई और यहाँ आने वाले तमाम अदीब और शोरा फ़ख्र महसूस करते हैं। कराची प्रेस क्लब की अपनी एक रिवायात है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवायात है और ये एक बहुत हमारा रहा है, आगे भी रहेगा। मैं प्रेस क्लब की मैनेज से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ आए, इंशाअल्लाह आगे भी चलें। शुक्रिया खालिद मुइन ने प्रेस क्लब की नुमाइंदगी करते हुए आपको खुशामदीद कहा। हम सबको यहाँ ये हदीस सुनाई कि आइंदा भी ऐसी तकरीबात ऐसी नशिस्तें के वक्त भी हो गया है, हम सब खाना भी खा चुके हैं और हमें नशिस्त के बाद चाय भी पीनी है। तो मैं नशिस्त का बाकायदा साहिब की इजाज़त हुआ ये कि रस्ते मुकाम में दरबदर होकर या बिना अपने आप को खोकर कितनी छोटी सी उम्र में सलमान, कितनी छोटी सी उम्र में सलमान घर से निकले थे हम बड़े होकर। दस्ते इनका में दरबदर होकर क्या मिला अपने आप को खोकर। कितनी छोटी सी उम्र में सलमान घर से निकले थे हम बड़े अच्छा के किसी भी गम से कुछ होता नहीं है, किसी भी गम से कुछ होता नहीं है कि पत्थर आँख से रोता नहीं। किसी भी गम से कुछ होता नहीं है कि पत्थर आँख से रोता नहीं है। जिसे ताबीर में वहशत मिली हो, जिसे ताबीर में वहशत मिली हो वो डर से ख्वाब के सोता नहीं है। जिसे ताबीर में वहशत मिली हो, जिसे ताबीर में वहशत मिली हो वो डर से ख्वाब के सोता नहीं है। और जो चाहा ही नहीं वो हो रहा है, जो चाहा ही नहीं वो हो रहा है, जो होना चाहिए होता है। जो चाहा ही नहीं हो रहा, जो होना चाहिए होता है। तर्के ताल्लुकात की ये सज़ा भी है, तर्के ताल्लुकात की ये सज़ा भी है, उससे बिछड़ के हमको उसे सोच ताल्लुकात की ये सज़ा बिछड़ के हमको उसे सोचना क्या कहना। और रहना है मसलहत के तहत बेनियाज़ नहीं, रहना है मसलहत के तहत बेनियाज़ नहीं, सबकी नज़र बचा के उसे देखना। रहना है मसलहत के तहत बेनियाज़ भी, रहना है मसलहत के तहत बेनियाज़ भी, सबकी नज़र बचा के उसे देखना है। सुलझा हुआ सफर समझते हैं मुझको लोग, सुलझा हुआ सफर समझते हैं मुझको लोग, उलझा हुआ समझ में कोई दूसरा उलझा हुआ समझ में कोई दूसरा। और साहिब साहब की मैंने किताबों की देखी, उसमें माँ के हवाले से कई चीज़ें तसल्सल से एक साथ दी हैं, तो इनकी मैं
वहाँ से अटैचमेंट का मुद्दा था, तो मैं अपने एक नज़्म माँ के हवाले से पेश करते मैं नज़्म और माँ है उससे मुझे आया यार कि मैं आपके सामने अच्छी क्लास पेश करूँ कि कागज़ पर तुम माँ लिख देना, कागज़ पर तुम माँ लिख देना, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखना। कागज़ पर तुम माँ लिख देना, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखना। क्या लिखना? खुशबू कोई लिख सकता है? क्या लिखोगे? खुशबू कोई लिख सकता है? ममता को तहरीर में कोई ला सकता है? दिल का एक तसव्वुर है, दिल का एक तसव्वुर है, लेकिन जैसा माँ का दिल है क्या कोई दिल हो सकता है? लेकिन जैसा माँ का दिल है क्या कोई दिल हो सकता है? उस दिल के असरार किसी तहरीर से वाज़ेह हो सकते हैं? मुझे यकीन है नहीं हो सकते। फिर भी तुमको लिखना हो तो ऐसा करना, जब माँ लिखना उसके बराबर दिल लिखना। फिर भी तुमको लिखना हो तो ऐसा करना, जब माँ लिखना उसके बराबर दिल लिख देना। दिल लिख कर तुम रुक मत जाना, माँ की बातें ध्यान में लाना, कलम उठाना, दिल के आगे दुख लिख देना, फिर चाहो तो फिर भी तुमको लिखना हो तो ऐसा करना, जब माँ लिखना उसके बराबर दिल लिख देना। दिल लिख कर तुम रुक मत जाना, माँ की बातें ध्यान में लाना, कलम उठाना, दिल के आगे दुख लिख देना। भाई फिर क्या चाहो तो क्या कागज़ पर तुम माँ लिख हाज़िर महफिल इस तमा फराशी के बाद मैं यहाँ सारे ही माशाल्लाह सीनियर शुअरा हैं, कोई तक़दीम व ताख़ीर के मसाइल वैसे भी नहीं हैं। हम फिर भी ये अंदाज़ा करते हैं कि कौन किससे ताज़ा कारी के साथ शुरू किया जाए। तो मैं मुल्तमिस हूँ ज़ोहरा जुनैद से कि अपने कलाम से, अपने अशार से कल इसी खाक से मुमकिन है कि ज़मज़म ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, दिल मुकम्मल कभी तस्खीर नहीं हो सकता। भाई क्या ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, दिल मुकम्मल कभी तस्खीर नहीं हो सकता। आज रूठे हुए साजन ने बुलाया है मुझे, आज रूठे हुए साजन ने बुलाया है मुझे, आज तो कुछ भी इनागीर नहीं हो सकता। क्या कहना, आज रूठे हुए साजन ने बुलाया है मुझे, आज तो कुछ भी इनागीर नहीं हो सकता। हो ना हो ये कोई अपना ही खुला है मुझ पर, हो ना हो ये कोई अपना ही खुला है मुझ पर, मेरे दुश्मन का तो ये तीर नहीं हो सकता। हो ना हो ये कोई अपना ही खुला है मुझ पर, मेरे दुश्मन का तो ये तीर नहीं हो सकता। बांध ले दोस्त गिरहा में ये मेरा फरमाया, बांध ले दोस्त गिरहा में ये मेरा फरमाया, कुछ भी कर ले तो मगर मीर नहीं हो सकता। बांध ले दोस्त गिरहा में ये मेरा फरमाया, कुछ भी कर ले तो मगर मीर नहीं हो सकता। करबला के लिए मखसूस है बस एक ही शख्स, करबला के लिए मखसूस है बस एक ही शख्स, दूसरा कोई भी शब्बीर नहीं होगा। के लिए मखसूस है बस एक ही शख्स, करबला के लिए मखसूस है बस एक ही शख्स, दूसरा कोई भी शब्बीर नहीं हो सकता। आप शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, दिल मुकम्मल कभी तस्वीर नहीं हो सकता। करबला के लिए मखसूस है बस एक ही शख्स, दूसरा कोई भी शफीक नहीं हो सकता। शफीक नाजिश और हाज़िर महफिल शरीफ शुअरा तो शायद कलाम पेश करेंगे, बहुत कदावर हैं। मैं जिसमें काफ़ी तवील क़ामत तौक़ीफ़ करती रोट कर आँख के अंदर से निकल जाते हैं, वाह रोट कर आँख के अंदर से आँख
के अंदर से निकल जाते हैं, अश्क बच्चों की तरह घर से निकल जाते हैं। क्या अच्छा है, वाह वाह। टूट कर आँख के अंदर से निकल जाते हैं, अश्क बच्चों की तरह घर से निकल जाते हैं। सब पेड़ों को पता तक नहीं चलता शायद, सब पेड़ों को पता तक नहीं चलता शायद, जर्द पत्ते भरे मंजर से निकल जाते हैं। सब पेड़ों को पता तक नहीं चलता शायद, जर्द पत्ते भरे मंजर से निकल जाते हैं। तुम तराशे हुए बुत हो किसी मेहराब के बीच, तुम तराशे हुए बुत हो किसी मेहराब के बीच, हम ज़वाइद हैं जो पत्थर से निकल जाते हैं। तुम तराशे हुए बुत हो किसी मेहराब के बीच, हम ज़वाइद हैं जो पत्थर से निकल जाते हैं। याद और गम की रिवायात से निकला हुआ, याद और गम की रिवायात से निकला हुआ है दिल जो इस वक्त मेरे हाथ से निकला हुआ। याद और गम की रिवायात से निकला हुआ है दिल जो इस वक्त मेरे हाथ से निकला हुआ है। मुड़ के देखे भी तो पत्थर नहीं होता कोई, मुड़ के देखे भी तो पत्थर नहीं होता कोई, जाने क्या शहरे तिलिस्मात से निकला हुआ है। मुड़ के देखे भी तो पत्थर नहीं होता कोई, जाने क्या शहरे तिलिस्मात से निकला हुआ है। रात ये कौन सा मेहमान मेरे घर आया, रात ये कौन सा मेहमान मेरे घर आया, सारा घर हल्के आफात से निकला हुआ। रात ये कौन सा मेहमान मेरे घर आया, सारा घर हल्के आफात से निकला हुआ है। गुजरे हिजर में बैठा है जो मजदूर सिफत, गुजरे हिजर में बैठा है जो मजदूर सिफत, अरसे शोरे मुनाजात से निकला हुआ है। और लश्करी गांव पे शब खून नहीं मारेंगे, लश्करी गांव पे शब खून नहीं मारेंगे, हौसला गश्त पे कल रात से निकला हुआ है। लश्करी गांव पे शब खून नहीं मारेंगे, लश्करी गांव पे शब खून नहीं मारेंगे, हौसला गश्त पे कल रात से निकला हुआ है। मानते कब है भला ऊंचे मकानों वाले, मानते कब है भला ऊंचे मकानों वाले, शहर का शहर मज़ाफ़ात से निकला हुआ है। मानते कब है भला ऊंचे मकानों वाले, शहर का शहर मज़ाफ़ात से निकला हुआ है। और आखिरी शेर है कि ज़र का बंदा हो कि महरूमी का मारा हुआ शख्स, ज़र का बंदा हो कि महरूमी का मारा हुआ शख्स, जिसको देखो वही औकात से निकला हुआ। ज़र का बंदा हो कि महरूमी का मारा हुआ शख्स, जिसको देखो वही औकात से निकला हुआ है। लश्करी गांव पे शब खून नहीं मारेंगे, हौसला गश्त पे कल रात से निकला हुआ है। यहाँ और आप सब लोगों के बेहतरा शुक्रगुजार हैं कि आज बड़े अच्छे शेर सुनने को मिले। और अच्छा तो ये होता कि इतने अच्छे शेरों के बाद और अच्छा शेर के उसके बाद औसाफ से सुनते, क्योंकि अच्छा सुनने को बहुत कम मिलता है जहाँ। और जहाँ तक सिलसिला मेरी अपनी तैयारी का है, अपने शेर से वाकिफ़ हूँ, अपने रूस से वाकिफ़ हूँ, अलबत्ता अच्छी सोहबतों से थोड़ा बहुत जो हासिल हो गया है उसमें
कभी कभी हिदायत जो है वो बन जाता है, तो कुछ एक दो चीज़ें हो जाती हैं। तदा यहाँ से कर लेते हैं कि यहाँ के माहिरों कामिल से तुम हुनर में अदी, वहाँ के माहिरों कामिल से तुम हुनर में अदी, हमारे काम को परवरदिगार करता रहा, हमारे काम को परवरदिगार करता रहा। क्योंकि माँ का हवाला हमारे सलमान भाई ने दिया, किताब से बड़ी खूबसूरत आपने नज़म सुनाई। किताब में बहुत सी चीज़ें हैं अम्मी के लिए। एक शेर से वापसी पे रात को बैठ के दफन के बाद अजीब सी एक कैफियत होती है, और उसमें दो मिसरे हुए किताब में मालूम है कि दिल की धड़कन को सुना गौर से खबरा कभी। इसमें शायद वही बात हो जो आपकी नज़र में है कि जन्नत बहुत खूबसूरत है। दिल की धड़कन को सुना गौर से खबरा कभी, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ